Good morning, student. Welcome to the second part of Geography, chapter first. Today we will go learn about what is a biosphere. The term biosphere is defined by the dictionaries is the part of the Earth's surface and the atmosphere inhabited by living things. The biosphere, from the Greek bios, life, sphere, is the layer of the planet Earth where life exists. That means biosphere can be defined where the life is existence, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अदर प्लांट्स के लिए पॉसिबल इन्वायरमेंट है, वो लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है, वो है बायोस्फीयर. See in the second paragraph, the Encyclopedia of Earth states that the term was coined by the geologist Edward Suess 1831 to 1914 in 1875. इंसाइक्लोपीडिया में भी कहा गया है द कॉइन जियोलॉजिस्ट इवर्ट स्विस ने. He defines the biosphere as the place on the surface of the earth where life dwells. इन्होंने कहा है कि बायोस्फीयर अर्थ में ऐसा प्लेस है, यानी कि पृथ्वी पे ये बायोस्फीयर ऐसा जगह है जहाँ पे लाइफ जीवित रह सकते हैं, लाइफ पॉसिबल है. एडिशनली रशियन फिजिसिस्ट वेल्डिमर आई वेडेंस्की 1863 to 1945 definition of the term resembles its current ecological uses. He redefines ecology as the science of the biosphere. इन्होंने फिर से इकोलॉजी को साइंस ऑफ द बायोस्फीयर एंड द कंसेप्ट बिकम द सेंटर ऑफ द अर्थ सिस्टम साइंस. सी इन द थर्ड पैराग्राफ, द बायोस्फीयर इज यूनिक. So far there has been no existence of life elsewhere in the universe. बायोस्फीयर क्या है? यूनिक, अलग है, क्योंकि वहाँ पे लाइफ इसके अलावा कहीं पे यूनिवर्स में यानी कि अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन द सन. एनर्जी प्रोवाइडेड एज अ सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय द प्लांट, सम बैक्टीरिया एंड फोटिस इन द मार्वलस फेनोमेनन ऑफ फोटोसिंथेसिस. लाइफ बायोस्फीयर में पॉसिबल है क्योंकि वहाँ पे सन का जो हीट है यानी कि एनर्जी है, सनलाइट जो प्लांट कैप्चर करते, प्लांट और ह्यूमन बींग्स कैप्चर करती है, वो एक फेनोमेनन है, एक प्रोसेस में है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जो लाइफ को आगे बढ़ने में मदद करती है और वो चेन कंटिन्यू होती है. नाउ सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. In 1971, UNESCO launched a global program to formalize the scientific interaction between the man and his natural environment. UNESCO ने ग्लोबल प्रोग्राम लॉन्च किया है तो प्रूफ करने के लिए इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड नेचुरल एनवायरनमेंट. दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड द मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, डैट इज MAB, जिसका फुल फॉर्म है मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम. Some 120 countries have joined in by establishing 669 biosphere reserves, including 16 transboundary reserves connected by the World Network of Biosphere Reserve. The MAB is a worthy initiative aimed at conserving the ecology and the environment, which is essential to the very survival of many rare and dying species of flora and fauna. That means MAB यानी कि मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम ने एम क्या क्या है? कन्वर्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल. ये जिंदा रहने के लिए यानी कि कंटिन्यू लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. इंडिया विथ its rich reserve trove of biodiversity is geographically ideal for establishing, cultivating and maintaining a variety of biosphere reserve. इंडिया में जहाँ पे बहुत सारी कल्चर रहती है, बहुत सारे ट्रेडिशंस रहती है, ये एक आइडल इस्टेब्लिशमेंट है, कल्टिवेशन एंड मेंटेनेंस वेरियस बायोस्फीयर रिजर्व. बहुत सारे बायोस्फीयर इन्वायरमेंट रिजर्व वहाँ पे इस्टेब्लिश है. The next paragraph we will learn about biosphere reserve in India.
Biosphere Reserve in India has established about 18 different biosphere reserve in the country. हमारे इंडिया में about 18 different biosphere reserve है. Of these 10 are part of the World Network Biosphere Reserve set up under the auspices of the UNESCO Man and Biosphere Program. That is 18 में से यानी कि 18 में से 10 कहाँ के मेंबर हैं? MAB के मेंबर है. MAB का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी भी अंडरलाइन कर रही हूँ, जैसे कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. नॉट ओनली are animals protected in the biosphere reserve of our country, but the natural lifestyle of the indigenous people is also promoted. The communities in these regions are encouraged to retain their agrarian lifestyle and develop harmony with the plants and animals. इस एरिया में उस जगह पे वहाँ पे नॉट ओनली एनिमल्स का लाइफ प्रोटेक्ट होता है बायोस्फीयर में, बल्कि ह्यूमन बींग्स का कल्चर, मैंने आपको पहले भी बताया, सारी चीज़ की जो चेन है वो पूरी फॉर्मुलेट होके उसको पूरा रिजर्व यानी कि लाइफस्टाइल को डेवलप किया जाता है. नॉट इन द एंग्री मूड और नॉट इन द वार स्टाइल, इन द हारमोनी, यानी कि एक अच्छी स्मूथली आप बोल सकते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं, आगे बढ़ाने की प्रयास की जाती है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज Objectives of Biosphere Reserve. It may be denoted that BR's Biosphere Reserve, BR मतलब होता है Biosphere Reserve, are not a substitutes or alternative but a reinforcement to existing protected areas. The objective of Biosphere Reserve program as investigated by the core group experts are as follow. अब इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो पॉइंट वाइज दी गई है. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा है टू कंजर्व द डाइवर्सिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विद इन नेचुरल इकोसिस्टम. हमें इसका मतलब क्या है कि प्लांट्स और एनिमल्स का जो चेन है उसको हमें अलग अलग जो प्लांट्स डाइवर्सिटी जो है उसको इंटीग्रेट करना है और इसको चेन को सेव करना है यानी कंजर्व करना है. टू सेफगार्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ स्पेसीज ऑन विच देयर कंटिन्यूइंग इवोल्यूशन डिपेंड्स. जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी हमें सेव करना है. टू प्रोवाइड एरिया फॉर मल्टी फेसेट रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, और एक एरिया प्रोवाइड करना है कि इसके बारे में रिसर्च हो सके, इसके बारे में आगे और जानकारी हो सके इसको बचाने के लिए. टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके कि इसके आगे की ट्रेनिंग और एजुकेशन के लिए. एंड द लास्ट टॉपिक इज टू इंश्योर सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू मोस्ट एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ लोकल पीपल. और लास्टली इसका एक ऑब्जेक्टिव यह है कि नेचुरल रिसोर्स को एक अच्छे तरीक़ा से, एक अच्छे टेक्नोलॉजी से यूज़ करें जो लोकल पीपल की इकोनॉमिक को भी ग्रोथ कर सके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट line. This objective should be oriented in such a way that the BRs are the unit wherein the biological, socio-economical and cultural dimension of conservation are integrated together in a realistic conservation strategy. और ऑब्जेक्टिव को ऐसा फॉर्मुलेट करना है कि वो रियलिस्टिक कन्वर्जेशन स्ट्रेटजी यानी कि एकदम प्रैक्टिकली अच्छे से हो सके, डायमेंशन अच्छे से हो सके. नाउ नेक्स्ट topic is preservation of biosphere reserve. Preservation of biosphere reserve is not a simple matter. ये एक simple matter नहीं है. That we all know. To achieve a desired abundance of particular species wildlife, it is imperative to save their habitat because wildlife population responds very sustainably to their residence. किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, उसकी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए, उसके सेव करने के लिए बहुत ही सावधानी बरतनी होती है. वो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से उसको
हैबिटेट को सेव करते हैं, बिकॉज वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन रिस्पॉन्ड वेरी सेंसिबिलिटी, वो बहुत ही सेंसिबिलिटी, जनरेशन की कोई लिमिट नहीं होती कि पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है या कितना कम हो रहा है। Thus, habitat management is an efficient technique. Habitat management यानी कि जो वहाँ पे रहते हैं, अगल बगल के जो एरिया में रहते हैं, efficient मैनेज टेक्निक है. So we can say that wildlife management includes habitat management. तो wildlife management मतलब क्या होता है, अगल बगल के habitat management. आप अपने फोटो में देख सकते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. ये क्या है, नीलगिरी, जहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है, इसके अंदर क्या है, सारे एनिमल्स वगैरह रहते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन एनवायरनमेंट. अब ह्यूमन एनवायरनमेंट से हम सब फैमिलियर है. ह्यूमन डोमिनेट द planet अर्थ एंड मेक्स चेंज टू देयर सराउंडिंग टू सूट देयर नीड्स. ह्यूमन डोमिनेट द planet अर्थ, ये हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो planet को बोलते हैं, और अपने अकॉर्डिंगली जैसे हमें ज़रूरत होता है, जैसे हमें अच्छा लगता है, जैसे हमें अच्छा लगता है उस हिसाब से इसको चेंज करते हैं. दिस इज़ वाई दे फॉर्म द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट. इसीलिए हम अब इन्वायरमेंट के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ प्रिमिटिव पीपल दैट लिव इन डेंस फॉरेस्ट एंड अदर आइसोलेटेड एरियाज एडॉप्ट to their environment and lived in the harmony with nature. That means जो पहले के छोटे से पॉपुलेशन थे वो क्या करते थे, वो पहले जंगल में रहते थे. जंगल में रहने के बाद धीरे धीरे उसने क्या किया, अडॉप्ट किया एक इन्वायरमेंट सिस्टम एंड लाइक द हार्मनी विद द नेचर. और प्रकृति को बिना नष्ट किए, बिना उसके हानि पहुंचाए उन्होंने ये ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट का काम किया था. Gradually, humans started processing various raw materials to meet their needs. और धीरे धीरे उसने बहुत सारी रॉ यानी कि कच्ची मटेरियल्स को अपने ज़रूरत के हिसाब से लेना स्टार्ट किया. द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन द यूरोप इनेबल्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इम्प्रूव that the world become a family. Thus, many changes took place in our environment, which were mostly due to the natural process of the human एक्टिविटी. ये बहुत सारी जो ह्यूमन की एक्टिविटी होती है उससे ही ये पॉसिबल हुआ. उसके बाद देखिए थर्ड पैराग्राफ में, विद द पैसेज ऑफ द टाइम, जो समय बीतते गया आवर सोसाइटी हैज़ डेवलप्ड इमेंसली. हमारी सोसाइटी डेवलपमेंट तो हम चाहते ही हैं और हम अडॉप्ट भी करते हैं. टू फुलफिल हिज नीड्स मैन हैज़ हार्टलेसली कैरिड आउट हिज एक्टिविटीज़ विदाउट कंसिडरिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. और हमारी ज़रूरतों, अपनी ज़रूरतों को पूरी करते करते हम करने के लिए हमने उसका इम्पैक्ट जो इन्वायरमेंट पे पड़ती है, जैसे कि पॉल्यूशन होती है, वो इम्पैक्ट को ध्यान में ना रखते हुए आगे बढ़ते गए. एक्टिविटीज़ लाइक कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, पॉल्यूशन, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग. एक्टिविटीज़ लाइक कटिंग ऑफ फॉरेस्ट मतलब आप समझते हो, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट मतलब होता है पेड़ को काटना. पॉल्यूशन यानी प्रदूषण करना. एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर भी ज़रूरत है हमारे, लेकिन अगर सारे पे एग्रीकल्चर ही किया जाएगा तो फिर सब फर्टाइल सॉइल की मात्रा भी कम हो जाती है और सॉइल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, सॉइल इरोजन वगैरह. माइनिंग एंड द अदर मैनी हैव एडवर्सली अफेक्ट ऑन आवर वेदर कंडीशन, और ये हमारे वेदर कंडीशन को एडवर्सली अफेक्ट करता है. लार्ज agricultural land has been converted to commercial area, residence, business. Roads are overcrowded with the traffic, smokes, dust causing air pollution and noise pollution. The list is endless. इस चीज़ के जो एक्टिविटी है, जो पॉल्यूशन है, इसका लिस्ट क्या है, इनलेस है. इनलेस मतलब अनगिनती है, इसको काउंट नहीं करते, इसका अंत नहीं है. The polar caps are melting and the many plants and animals gone extinct. Pollution from the vehicle can cause acid rain. यहाँ पे बोला गया है the polar caps are melting. जो पोलर एरिया में जो कैप्स यानी कि रेसिडेंट्स है वो क्या मेल्ट हो रहे हैं. यहाँ के जो एनिमल्स वहाँ के जो कुछ है वो मेल्ट हो रहे हैं. एंड एनिमल्स एंड गॉन एक्सटिंक्ट यानी कि धीरे धीरे उसकी जो प्रजाति है वो ख़त्म हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है. एंड पॉल्यूशन फ्रॉम द व्हीकल्स, जो हमारी वाहनों से, वाहन व्हीकल्स मतलब वाहने होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि कार, बसेस वगैरह जो भी होती है, उससे उसके पॉल्यूशन से क्या होती है, एसिड रेन होती है.
Degradation of the environment has been brought about primarily by human interference. Therefore, we need to be sensitive and aware of the various environmental problems and take care not to destroy our environment by future. Degradation of the environment. Degradation मतलब होता है डिक्लाइनेशन ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि कम होना, यानी कि उसका ख़त्म होना, कम धीरे धीरे मात्रा में कम हो जाना। वो क्या है हमारे अबाउट प्राइमरी ह्यूमन इंटरफेरेंस। वो क्या किस चीज़ के वजह से हुआ है, मतलब कि ह्यूमन इंटरफेरेंस के वजह से, जो हम इंटरफेरेंस करते हैं नेचर के साथ, उसके वजह से हुआ है। देयरफॉर वी नीड टू बी सेंसिटिव। हमें एकदम ही चौकन्ना होना चाहिए, एकदम ही अवेयर होना चाहिए कि जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, एंड टेक केयर नॉट, और हमें अपनी ध्यान रखना चाहिए कि इन्वायरमेंट को फर्दर डिस्ट्रॉय ना करें। अपने हिसाब से ज़्यादा प्लांट लगाएं, उसको डिस्कार्ड, अगर आप एक पेड़ काटते हो तो 2 पेड़ वहाँ पे लगाएं। इससे क्या हो, इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम में बैलेंस बनी रहेगी।